Hi guys, welcome to my channel Hinu's Biology Tutorial. So this is Hinu Sharma and I have made this channel to serve the free lecture videos to all those students who are having biology as major subjects and for all the students who are preparing for any competitive exams like CSA or NET. So from my channel I will try to make lecture videos on the several fields of biology like general biology, microbiology, molecular biology and cell and development biology. So today in this video I will discuss cell division in case of eukaryotic cells followed by mitosis. So before venturing into this topic of cell division, let's go through a very little introduction of cell. Okay, so all of us knows that कि जो cell है, it is a basic and fundamental unit of life. If we are talking about any living thing, that is plants, birds, animals and human or any unicellular organism like amoeba and bacteria, all these things are made up of cell. Multicellular organisms body have to perform various functions, okay, and these functions are performed by various organs that are specific for specific functions, okay. Like अगर हम excretion की बात करें तो excretion के लिए kidneys will help, for circulation heart will help, okay. So various functions are performed by various organs, okay. And a question arise होता है कि ये जो organs हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं. So obviously जो organs हैं these are made up of tissues and further जो tissues हैं फिर से क्वेश्चन अराइज होता है कि टिश्यूज अब किस चीज़ के बने होते हैं. ओके, सो टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स. ओके, सो फ्रॉम दिस थिंग यू कैन इजीली कंक्लूड कि जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ का. विदाउट सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है ये नहीं बन सकता, बिकॉज द सीरीज ऑफ इवेंट्स विल बी फॉलोड इन दी डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, लाइक जैसे सेल होगा, सेल विल अंडरगो माइटोसिस, सेल विल अंडरगो वेरियस सेल डिविजन्स, ओके, and they will form so many cells, okay, and group of cells will form tissues, group of tissues will form organs, organs will form organ system, and within that organ systems organ will perform various functions. Let's go through the cell division. Okay, so what is cell division? Cell division is a process by which cells go through to divide. Okay, and there are different types of cell divisions depending upon the organisms कि कौन सा organisms जो है वो divide हो रहा है. If you are talking about prokaryotic cells like bacteria, then they use binary fissions for cell division. And eukaryotic cells of all the sizes, they use mitosis to divide. And if you are talking about sexually reproducing eukaryotes, then these eukaryotes will use a special form of cell division called meiosis. In meiosis there will be a reduction of genetic content in the cell, okay. But for today we will discuss mitosis in detail and later on we will discuss meiosis in detail. Okay, so let's go through the need of cell division, outcome of the cell division की क्या ज़रूरत है cell division की. Okay, why cell division is required and what will be the outcome of cell division. Okay, so cell divisions usually results in genetically identical daughter cells, and through cell division cells can duplicate their genetic material, that is DNA, and this process is carried out in such a way that each daughter cells receives an exact copy DNA from the parent cell. Okay, also जो cell division है it helps in the continuity of life, especially in case of unicellular organisms. Okay, and in case of multicellular organisms cell division will helps in the development of fertilized cell, growth and repair mechanisms. Okay, so we can say that कि जो cell division है it is the integral part of the cell cycle. Without cell division life cannot be possible. Okay, if we talk about the eukaryotic cell division, then eukaryotic will have two major types of cell division, that is mitosis and meiosis. Okay, so mitosis is used to produce new body cells for growth and healing, whereas जो meiosis cell division है it is used to produce sex cells like eggs and sperms through the process like spermatogenesis and oogenesis. Okay, so usually जो meiosis है it occurs in sexually reproducing organisms in order to produce sex cells like eggs and ovum and sperm. So let's discuss mitosis in detail. Okay, so mitosis is a kind of cell division. It is a process where a single cell divides into two identical daughter cells. Okay, तो mitosis में क्या होगा, जो parent cell होगा they will get divided, okay, into two identical daughter cells. Means जो daughter cells forms होंगे from the mitosis they will be identical to its parent cell.
मीन्स अगर पेरेंट सेल का सेम जो मॉर्फोलॉजी पेरेंट सेल का है, जो जेनेटिक कंटेंट पेरेंट सेल का है, वो सेम कैरेक्टर्स उसके डॉटर सेल भी शो करेंगे। ओके, सो माइटोसिस जो है इट इज़ फर्दर कंप्राइज्ड ऑफ टू फेजेस, दैट इज इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज और एम फेज. So let's discuss interphase. Okay, so during interphase what will happen, जो cell होगा it will undergoes normal process, okay, while preparing for cell division. Okay, so interphase में basically 3-4 events ही होंगे जो कि further divided हुए हैं into subphases, okay, into 3 subphases like G1 phase, S phase and G2 phase. So जो G1 phase है it is also known as first gap because from a microscopic aspect only little change is visible. So during this phase what will happen, जो सेल होगा it will become quite active at biochemical level because अगर हम किसी भी प्रोसेस की बात करें तो किसी भी प्रोसेस को फॉलो अप करने के लिए सेल को रेडी होना ज़रूरी है। तो G1 फेज में क्या होगा, सेल विल ट्राई टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द माइटोसिस प्रोसेस, ओके। It will become active at biochemical level, it will synthesize some proteins, it will synthesize some energy that will be required for the further process of mitosis, okay। तो G1 phase में क्या हो रहा है, firstly cell will become active at biochemical level। अब वो active कैसे होगा, by synthesizing some protein, by synthesizing some energy जो कि further process of mitosis में ज़रूर use होगी, okay। So after G1 phase there is another phase that is S phase. So S phase is also known as synthesis of DNA because in this phase there will be a synthesis of DNA, means replication of DNA will takes place, means अगर कोई एक कॉपी है it will get replicated into 2 copies. So अभी S phase में किस चीज़ की replication हो रही है, of the DNA. And also during this time during this phase the amount of DNA will get double. मीन्स अगर G1 फेज में DNA का कंटेंट 2C था तो सिंथेसाइज होने के बाद, रेप्लिकेशन होने के बाद उस सेल का जो DNA कंटेंट है वो डबल हो जाएगा टू 4C, ओके। So after S phase cell will jump into another phase that is G2 phase, okay। So during G2 phase what will happen, there will be a synthesis of protein, okay, that will be required for the further process of mitosis, okay, while cell growth remain continuous during this process, okay। So these are the various subphases that falls in the interphase, okay। तो interphase में आप देख सकते हो कि जिस सेल की माइटोसिस होगी उस सेल में कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, उस फेज में उस सेल में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ओके। सेल खुद को रेडी करेगा एट बायोकेमिकल लेवल सो दैट कि वो परफॉर्म कर पाए इन माइटोसिस सेल डिवीजन, ओके। देयर विल बी अ सिंथेसिस और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड देयर विल बी अ ग्रोथ ऑफ सेल इन इंटरफेज, ओके। सो आफ्टर इंटरफेज जो सेल है इट विल गेट एंटर्ड इनटू अनदर फेज दैट इज माइटोसिस फेज और माइटोटिक फेज और एम फेज, ओके। एंड दिस फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस दैट इज प्रोफेज, metaphase, anaphase and telophase. So let's discuss prophase, okay। So while discussing the prophase in detail you can also go through a diagram that is visible on your screen, okay। So diagrammatically अगर आप माइटोसिस के प्रोसेस को समझते हो तो it will get easy for you to grab the topic, to clear the concept of any topic. So as all of us knows that कि जो जेनेटिक कंटेंट होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, जो कि न्यूक्लियस रीजन में प्रेजेंट होता है, ओके। सो इन द न्यूक्लियस रीजन जो क्रोमेटिन होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे दे विल बी इन टेंगल्ड फॉर्म, ओके। सो प्रोफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है सेल के, ओके, दे बिकम्स विजिबल, दे बिकम्स कंडेंस, ओके। एंड जो क्रोमोसोम्स होंगे दे आर मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो आपस में अटैच होंगे थ्रू ए जंक्शन पॉइंट जिसको हम सेंट्रोमेयर कहेंगे, ओके। एंड ऑल्सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। एंड दो स्पिंडल फाइबर्स विल गेट अटैच टू ए ऑर्गेनेली जिसको हम क्या कहेंगे, centrosome, okay। So centrosome are a proteinaceous organelles, okay, that move away from each other to the opposite poles, okay, जो कि स्पिंडल फाइबर्स को अराइज करेंगे, जो कि स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करेंगे, ओके। एंड ऑल्सो प्रोफेज में देयर विल बी अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप सो दैट कि जो जेनेटिक मटेरियल है फॉलोइंग बाय फॉलोइड क्रोमोसोम्स, ओके, जिसमें जो क्रोमोसोम्स पे बना है
वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए इनटू द सेल। ओके, तो प्रोफेज में 3-4 इवेंट्स हुए हैं। फर्स्टली क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे, ओके, सो प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स होंगे दे बिकम्स विजिबल, ओके, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ओके, एंड दोज स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड और अराइज्ड फ्रॉम द सेंट्रोसोम्स, ओके, एंड दोज सेंट्रोसोम्स आर लोकेटेड एट द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स, ओके, एंड ऑल्सो देयर विल बी अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप सो दैट कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस से बाहर आके सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ओके, सो आफ्टर प्रोफेज सेल विल जंप इनटू अनदर फेज दैट इज अ मेटाफेज। सो इन मेटाफेज व्हाट विल हैपन, जो क्रोमोसोम्स होंगे दे विल अलाइन देमसेल्व्स एट द इक्वेटर और द सेंट्रल रीजन ऑफ द सेल। ओके, सो यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम कि जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने खुद को अलाइन करा है एट द इक्वेटर रीजन ऑफ द सेल्स एंड दोज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर्स जो कि सेंट्रोसोम से अराइज हुए हैं। ओके, तो अब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ओके, वो क्रोमोसोम्स के किस पार्ट के साथ अटैच्ड हुए हैं, एट द जंक्शन पॉइंट जहाँ से दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अटैच्ड हैं, दैट इज सेंट्रोमेयर पार्ट। ओके, तो सेंट्रोमेयर पार्ट्स के साथ ही जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अटैच्ड होंगे एंड स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से अराइज होंगे, फ्रॉम द सेंट्रोसोम जो कि ऑपोजिट पोल में होंगे इन द सेल। ओके, तो मेटाफेज में दो ही चीजें होंगी। फर्स्टली जो सेल होंगे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो खुद को सेल के एक इक्वेटर रीजन में खुद को अलाइन करेंगे एंड खुद को अटैच करेंगे विद द स्पिंडल फाइबर्स। ओके, सो आफ्टर मेटाफेज, ओके, देयर इज अनदर फेज दैट इज एनाफेज। सो एनाफेज में क्या होगा, जो सेंट्रोमेयर्स होंगे दे गेट डिवाइडेड। सो सेंट्रोमेयर इज व्हाट, इट इज द जंक्शन पॉइंट जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अटैच्ड हैं। ओके, तो अगर सेंट्रोमेयर ही डिवाइड हो गया तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दे विल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो अभी जैसे सेंट्रोमेयर डिवाइड हो गया तो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में से सेपरेट हो जाएंगे। ओके, एंड दे विल स्टार्टेड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे जाएंगे, विद द स्पिंडल फाइबर्स। ओके, बिकॉज स्पिंडल फाइबर्स के साथ ही सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थे वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थे वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ ही अटैच थे। तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड्स विल स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। Okay, so after anaphase there is another phase that is telophase and cytokinesis. Okay, so जो अभी एक्चुअल डिवीजन होगी न्यूक्लियर पार्ट की, साइटोप्लाज्म पार्ट की, वो किस फेज में होगी, इन टीलोफेज। ओके, सो जैसे कि आई टोल्ड यू इन एनाफेज स्टेज कि एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थे दे विल स्टार्टेड मूविंग इन ऑपोजिट पोल। ओके, तो टीलोफेज में क्या होगा, जो वो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में से सेपरेट होके अलग अलग डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे थे। ओके, दे विल रीच दोज टू ऑपोजिट पोल्स। जैसे कुछ सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक पोल में आ जाएंगे एंड दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड्स विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ओके, आफ्टर रीचिंग द ऑपोजिट पोल्स जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे जिसके साथ सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच थे, ओके, दे विल गेट डिसइंटीग्रेट्स and also there will be a reformation of nuclear and envelope around the two sets of chromosomes because from this diagram आप easily ये चीज़ इजीली आप देख सकते हो कि जो क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग डायरेक्शन में गए थे, ओके, वहाँ पे दो सेट्स बन चुके हैं, ओके, ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स देयर विल बी अ रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप अराउंड दोज टू सेट्स। ओके, एंड ऑल्सो देयर विल बी अ साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा सेल का, इट विल ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट सेल्स। ओके, सो व्हेन साइटोकाइनेसिस विल टेक्स प्लेस, जो वो दो सेल्स होंगे, ओके, दे विल गेट स्प्लिटेड आउट इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स। ओके, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो एक और चीज़ है दैट इज क्लीवेज फ्यूरो। ओके, तो अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में क्लीवेज फ्यूरो प्रेजेंट होती है जो कि दो सेल्स को स्प्लिट करने में हेल्प करती है, दो सेल्स को सेग्रीगेट करने में हेल्प करती है। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, ओके, जो जंक्शन पॉइंट दो सेल्स को आपस में से डिटैच कर रहा है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द process of mitosis, okay, that how does mitosis will takes place.
ओके, सो लेट्स गो थ्रू द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अभी तो हमने ये चीज़ देख ली कि माइटोसिस ऐसे स्टार्ट हुआ है एंड ऐसे ये 2 न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा। ओके, तो अभी क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई माइटोसिस इज रिक्वायर्ड। ओके, सो माइटोसिस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी एज इट मेंटेन्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज ए पेरेंटल सेल। बिकॉज माइटोसिस में क्या होगा, एक पेरेंट सेल होगा वो खुद की डिवीजन करवाएगा जिसके थ्रू 2 न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे एंड जो 2 न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे दे विल कम्प्लीटली रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। ओके, जो उनके पेरेंट्स की मॉर्फोलॉजी होगी, जो उनके पेरेंट्स का स्ट्रक्चर होगा, जो उसके पेरेंट्स की जेनेटिक कंटेंट होगा, सेम जेनेटिक कंटेंट उसके डॉटर सेल्स में भी होगा। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो माइटोसिस है इट हेल्प्स टू मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी and also it helps in the growth of multicellular organisms because multicellular organism जो है वो एक सेल से ही नहीं बनता। ओके, एक सेल को खुद की डिवीजन करवानी पड़ती है जिसके थ्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। ओके, एंड ऑल्सो mitosis is required for cell replacement, okay, as by replacing some damaged cells and tissues। okay, so during an injury कुछ सेल्स जो होते हैं दे गॉट डैमेज्ड। ओके, सो इन ऑर्डर टू रिप्लेस ऑल दोज डैमेज सेल्स healthy cells have to undergo through mitosis process so that ki they can replace those damaged cells by producing new daughter cells। and also जो mitosis है it is required for regeneration because some animals are able to regenerate their whole parts of the body। देर आर सम एनिमल्स ओके जो कि अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करवा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओके, एंड ऑल्सो जो माइटोसिस है इट इज़ रिक्वायर्ड इन इट इज़ यूजफुल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज बाय वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म ओनली। ओके, सो दीज आर द वेरियस significance points of mitosis, that why mitosis is done, that why mitosis is required। and in this side you can see the various sites of mitosis। okay, that where does mitosis will takes place। okay, so in growing tissues mitosis will occur including the tissues from fetus, babies and growing children। and it will also takes place in red bone marrow for the production of blood cells, in lymphoid tissues for the production of or formation of lymphocytes, and it will also takes place in testes for the process of spermatogenesis by which there is a production of spermatozoa or sperm cells। mitosis can also takes place in epidermis, okay, for the replacement of superficial skin cells। okay, it can also takes place in hair follicles for the growth of hair, in gastrointestinal tract for the renewal of the epithelium। okay, so these are the various sites of mitosis जहाँ पे mitosis जो है वो होती है। एंड ऑल्सो देर इज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो माइटोसिस है इट डजंट नॉर्मली अकर इन न्यूरॉन्स एंड इन मसल सेल्स। ओके, so guys this was all about your mitosis, okay, including the various stages of mitosis, significance of mitosis and sites of mitosis। I hope this video will help you to clear the all doubts of yours related to the process of mitosis। so in my next video I will share the process of meiosis in detail। so guys अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है then you can like, share and subscribe my channel, and also don't forget to press bell icon। thank you।